اچھا، تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک بہت ہی حیرت انگیز ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارا فوکس ہوگا 1971 کی جنگ پر۔ جی، اور اس دور کے عالمی حالات پر۔ بالکل، دیکھیں اس وقت پوری دنیا کا جھکاؤ اور ہمدردیاں ایک طرف تھیں۔ پاکستان پر عالمی سطح سے شدید تنقیدی دباؤ تھا۔ ہاں، اور ظاہر ہے حالات کافی خراب تھے گراؤنڈ پر۔ صحیح، لیکن پردے کے پیچھے عالمی سیاست کا سب سے بڑا کھلاڑی یعنی یونائیٹڈ اسٹیٹس ایک بالکل ہی مختلف گیم کھیل رہا تھا۔ ایک ایسی گیم جو اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ہمارے پاس موجود اہم دستاویزات کو دیکھیں گے، خاص طور پر دا نکسن پاکستان کنیکشن، جیو پالیٹکس آف دا 1971 وار اور 1971 دا سیکرٹ وائٹ ہاؤس فائلز۔ جی، یہ فائلز واقعی بہت آئی اوپننگ ہے۔ خفیہ ڈپلومیٹک رازوں کو ڈھونڈنا اور سمجھنا ہے۔ آخر دنیا کی سب سے بڑی طاقت سب کی امیدوں کے خلاف جا کر پاکستان کی خفیہ مدد کیوں کر رہی تھی؟ چلیے اس مقام کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کسی ہائی سٹیک سپائی مووی سے کم نہیں لگتا، قسم سے۔ مطلب جہاں رچرڈ نکسن اور ہنری کسنگر نے وقت کے سب سے بڑے اور مشکل فیصلے کیے، تو آپ کے خیال میں اس ساری کہانی کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی عالمی سیاست کی سب سے دلچسپ اور پیچیدہ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ ان داستان ذات کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ معاملہ صرف ایک مقامی جنگ کا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے عالمی سیاست کے ایسے بڑے راز پوشیدہ تھے جن کا تعلق کسی ایک خطے سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے پاور ڈائنامکس سے تھا۔ مطلب یہ صرف انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ان خفیہ فائلز میں جو حقیقت چھپی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ امریکہ کی یہ خفیہ حمایت دراصل کسی اور ہی عالمی مقصد کا حصہ تھی۔ اوہ واو! تو سیاست کی اس عالمی شطرنج میں پاکستان صرف ایک مہرہ تھا جسے آگے بڑھا کر امریکہ دراصل دشمن کے بادشاہ کو چیکمیٹ کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے شطرنج کی بالکل صحیح مثال دی ہے، اور وہ دشمن کا بادشاہ اس وقت سوویت یونین تھا۔ اچھا، اگر امریکہ کی مدد کا اصل مرکز پاکستان خود نہیں تھا تو ان فائلز کے مطابق وہ کون سی عالمی طاقت تھی جس پر واشنگٹن کی نظریں جمی ہوئی تھیں؟ یہاں سب سے زیادہ حیران انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت جیو پالیٹکس کے اس کھیل میں امریکہ کا اصل عالمی ہدف چائنا تھا۔ ریئلی؟ چائنا؟ جی ہاں، اگر ہم اس دور کی عالمی سیاست پر غور کریں تو وہ کولڈ وار کا عروج تھا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس کا سب سے بڑا مخالف اور عالمی دشمن سوویت یونین تھا۔ صحیح، اور امریکہ ویسے بھی اس وقت کافی پھنسا ہوا تھا۔ بالکل، ویتنام وار کی وجہ سے امریکہ عالمی سطح پر کافی دباؤ میں تھا، جبکہ دوسری طرف سوویت یونین کا اثر و رسوخ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ تو نکسن اور کسنجر اس بات سے پریشان تھے؟ بہت پریشان تھے۔ وہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ امریکہ کو ہر حال میں رشیا کے اس بڑھتے ہوئے عالمی اثر کو روکنا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کیا سوچا؟ اس مقصد کے حصول کے لیے واشنگٹن میں یہ طے کیا گیا کہ انہیں ایشیا میں ایک نئے طاقتور دوست کی ضرورت ہے، اور وہ دوست انہیں چائنا کی شکل میں نظر آیا۔ یعنی دشمن کا دشمن دوست؟ ایگزیکٹلی۔ یو ایس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح چائنا کے ساتھ دوستی قائم کی جائے تاکہ پاور کا ایک نیا توازن بنائے اور رشیا کو عالمی سطح پر اکیلا کیا جا سکے۔ تو یہاں پر ایک عام سا سوال میرے ذہن میں آتا ہے، اگر امریکہ کو صرف چائنا سے دوستی کرنی تھی تو وہ ڈائریکٹ بات کر سکتے تھے نا؟ نہیں، اتنا آسان نہیں تھا اس وقت۔ کیوں؟ پاکستان کو بیچ میں لانے کا رسک کیوں لیا گیا؟ آخر واشنگٹن سے بیجنگ سیدھا فون کیوں نہیں ملایا جا سکتا تھا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں میکینکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس وقت کے حالات آج جیسے بالکل نہیں تھے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان پچھلے کئی اشروں سے کوئی براہ راست سفارتی تعلقات ہی نہیں تھے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے سے بالکل کٹ آف تھے؟ جی، دونوں ممالک کے درمیان انتہائی شدید اعتماد کی کمی تھی۔ ایک دوسرے پر شک اس حد تک تھا کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا کوئی چینل موجود ہی نہیں تھا۔ صحیح، اور پھر رشیا بھی تو تھا سین میں۔ بالکل، چائنا اور سوویت یونین کے درمیان بھی 1969 میں سرحدی تصادم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے چائنا بھی ایک نئے عالمی ایلی کی تلاش میں تھا۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر امریکہ کھلے عام چین سے رابطہ کرتا تو سوویت یونین فوراً اسے ایک خطرہ سمجھ کر کاؤنٹر مووز شروع کر دیتا۔
अच्छा, तो सीक्रेसी बहुत जरूरी थी। जी हाँ, जब मकसद चीन के साथ खुफिया और इंतहाई हसास ताल्लुकात बेहतर करना था, तो अमेरिका को एक ऐसे पुल की ज़रूरत थी, यानी एक ऐसी ब्रिज जिस पर दोनों तरफ से एतमाद किया जा सके। और जिस पर रशिया को शक भी ना हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही वजह बनी इस सारी कहानी में पाकिस्तान की अचानक और इंतहाई अहमियत की। क्योंकि पाकिस्तान के दोनों के साथ अच्छे टर्म्स थे। जी, पाकिस्तान के दोनों अमेरिका और चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। क्या बात है। आज के जदीद दौर में तो शायद ये काम व्हाट्सएप पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन के जरिए एक टेक्स्ट मैसेज से हो जाता है। हाँ, एक वॉइस नोट भेज देते। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया की नजरों से बचकर एक मुल्क के सदर का आलमी कासिद बनकर मैसेज पहुंचाना वाकई हैरत अंगेज है। इन फाइल्स में याहिया खान के किरदार को किस तरह बयान किया गया है? इन व्हाइट हाउस फाइल्स में याहिया खान का किरदार बिल्कुल एक अहम खुफिया पैगाम रसान के तौर पर सामने आता है। वो मैसेजेस कैसे पास करते थे? तरीका कार कुछ इस तरह था कि पैगामात इंतहाई खुफिया तौर पर हाथ से टाइप किए जाते थे। हाथ से टाइप? कोई ऑफिशियल लेटर हेड नहीं? नहीं, किसी मुल्क का ऑफिशियल लेटर हेड इस्तेमाल नहीं होता था, ताकि अगर ये लीक भी हो जाए तो इनकी तस्दीक ना की जा सके। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी आप समझ लें। सही, बहुत स्मार्ट। याहिया खान इन पैगामात को दस्ती तौर पर अपने एतमाद वाले सफारतों के जरिए बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान मुंतकिल करवाते थे। इस तरीके ने किसिंजर को वो कवर फराहम किया जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत थी। अच्छा, और वो एक बहुत मशहूर वाक़या भी तो है ना, उनकी बीमारी वाला। हाँ, इसकी सबसे बड़ी और हैरान कुन मिसाल जुलाई 1971 में किसिंजर का खुफिया दौरे बीजिंग है। बज़ाहिर किसिंजर पाकिस्तान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नाथिया गली में पेट खराब होने का बहाना बनाया था। जी बिल्कुल। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रहे हैं, और फिर वो मीडिया से गायब हो गए। जबकि असल में वो कहीं और थे। हकीकत में वो पाकिस्तान की मदद से एक खुफिया फ्लाइट के जरिए बीजिंग पहुंच चुके थे। इस मिशन को ऑपरेशन पोलो स्टेप का नाम दिया गया था। वाओ, ऑपरेशन पोलो स्टेप। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने उस ब्रिज का किरदार इंतहाई खामोशी और एतमाद के साथ अदा किया। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुश बैक देना चाहता हूँ। जी पूछें। क्या ये अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर नहीं था? एक सुपर पावर होने के नाते अमेरिका एक वक्त में दोनों काम क्यों नहीं कर सका? दोनों काम से आपकी क्या मुराद है? यानी अखलाकी बुनियाद पर स्टैंड लेना, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज चल रहे थे वहां, और साथ ही चीन से राब्ता करना, दोनों चीजों को साथ लेकर चलना इतना नामुमकिन क्यों था? देखें, अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो आलमी दर्जा पर होने वाले फैसले बदकिस्मती से अखलाकियत की बजाय रियल पॉलिटिक पर मबनी होते हैं। रियल पॉलिटिक, सियासत का वो रूप जहां सिर्फ पावर मैटर करती है। बिल्कुल। रियल पॉलिटिक का मतलब है कि फैसले हकायक और ताकत के तवाज़ुन को देखकर किए जाएं, ना कि अखलाकी उसूलों पर। हेनरी किसिंजर का वाज़े और पुख्ता मानना था कि अगर पाकिस्तान टूट गया और अमेरिका ने कुछ ना किया, जी, अगर अमेरिका ने इस मामले में अपने एली को अकेला छोड़ दिया, तो चाइना तक पहुंचने का वो वाहिद और अहम मौका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। चाइना को लगता कि अमेरिका धोखेबाज है। एग्जैक्टली। चाइना ये सोचेगा कि अमेरिका अपने दोस्तों का मुश्किल वक्त में साथ नहीं देता, और इस तरह वो नया एतमाद बनने से पहले ही टूट जाता। तो यानी व्हाइट हाउस पॉलिसी साजों के नजदीक आलमी खतरा ज्यादा बड़ा था? जी हाँ, उनके नज़दीक आलमी मंजरनामा ये था कि अगर सोवियत यूनियन का असर पूरी दुनिया पर फैल गया तो वो मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। और इस बड़े खतरे को रोकने के लिए उन्होंने इंसानी पहलू को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्होंने आलमी मफाद की खातर वाज़े तौर पर अखलाकी अक़दार को पसे-पुश्त डाल दिया। उनके लिए उस ब्रिज को बचाना किसी भी दूसरे इंसानी पहलू से ज़्यादा ज़रूरी था। ये सब चल रहा था, तो फिर आलमी दबाव के नतीजे में ये मामला आगे बढ़कर फौजी कशीदगी तक कैसे पहुंचा? ये बहुत अहम हिस्सा है इस कहानी का। मतलब जब खुफिया डिप्लोमेसी बंद कमरों से निकलकर समंदर में फौजी ताकत के मुजाहरे तक पहुंच गई। दस्तावेजात क्या बताती हैं कि अमेरिका ने अपना जोर किस तरह दिखाया? जब 1971 के आखिर में हालात इंतहाई कशीदा हो गए और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया, तो निक्सन को ये डर पैदा हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान का वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। और अगर वेस्ट पाकिस्तान भी चला जाता तो उनका वो चाइना वाला खुफिया चैनल हमेशा के लिए तबाह हो जाता। बिल्कुल। फिर निक्सन ने क्या किया?
इस वजह से पर्दे के पीछे की ये डिप्लोमेसी अचानक एक खुली धमकी और फौजी ताकत के मुजाहरे में तब्दील हो गई। दस्तावेजात बताती हैं कि अमेरिका ने एक बहुत ही जारहाना कदम उठाया। उन्होंने अपनी नेवी भेज दी थी ना? जी, उन्होंने अपना टास्क फोर्स 74 बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। इसमें उनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज शामिल था। USS एंटरप्राइज? वो तो एक मॉन्स्टर जहाज था उस वक्त का। ये एक इतना बड़ा जंगी जहाज था कि इसे समंदर में चलता हुआ एक बड़ा शहर कहा जा सकता है। बाप रे, एक मकामी खिते के तसादुम में सीधा न्यूक्लियर पावर वाली फौज को उतार देना। ये एक ऐसा कदम था जिसने उस वक्त पूरी आलमी बरादरी को हिलाकर रख दिया। यहाँ आके मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। USS एंटरप्राइज सिर्फ एक जहाज तो नहीं था, वो अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा निशान था। बिल्कुल, वो एक स्टेटमेंट थी दुनिया के लिए। लेकिन जैसे फिजिक्स का असूल है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, कोल्ड वॉर के उस दौर में जब अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फौजी ताकत बे ऑफ बंगाल भेज दी, तो सोवियत यूनियन ने खामोशी से तो नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं। दस्तावेजात से पता चलता है कि सोवियत यूनियन इस सारी सूरत हाल को बहुत गौर से ट्रैक कर रहा था। तो उनका काउंटर मूव क्या था? जैसे ही अमेरिका ने टास्क फोर्स 74 को हरकत में लाया, सोवियत यूनियन ने फौरन अपने व्लादिवोस्टॉक बेस से अपनी न्यूक्लियर आबदूजें रवाना कर दी। न्यूक्लियर सबमरीन्स सीधा बे ऑफ बंगाल की तरफ? जी हाँ, और उन्हें एंटी शिप मिसाइल से लैस किया गया था। उनका मकसद USS एंटरप्राइज को घेरना और अमेरिका को ये पैगाम देना था कि अगर उन्होंने कोई फौजी कार्रवाई की तो रशिया भी तैयार बैठा है। या खुदा, अब आप तसव्वुर करें कि एक तरफ अमेरिका का सबसे अजीम एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसके बिल्कुल नीचे समंदर की गहराइयों में सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। ये तो सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर 3 का सीन बन गया था। ये सूरत हाल इस कदर संगीन थी कि दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों और सियासतदानों की सांसें रुकी हुई थीं। पूरी दुनिया में ये खौफ फैल गया था कि सिर्फ एक छोटी सी गलती या गलतफहमी सीधा तीसरी आलमी जंग की शुरुआत कर सकती है। ये सब सुनकर वाकई उस वक्त की संगीनी का एहसास होता है। ये तो किसी थ्रिलर मूवी के आखिरी मंजर जैसा है, जहां दोनों ताकतें अपनी पूरी फौजी और न्यूक्लियर सलाहियत के साथ आमने सामने खड़ी हैं। और दोनों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक लॉजिक का सवाल है। जी बताएं। अमेरिका वियतनाम में पहले ही बहुत नुकसान उठा रहा था, उनकी आवाम वहां प्रोटेस्ट कर रही थी, तो क्या निक्सन वाकई एक रीजनल इशू के लिए सोवियत यूनियन के साथ न्यूक्लियर तसादुम शुरू करने वाले थे? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। क्या वो सच में इस लेवल का रिस्क लेने को तैयार थे? ये एक बहुत अहम सवाल पैदा करता है और इन्हीं द सीक्रेट व्हाइट हाउस फाइल्स ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल सफाई से दिया है। अच्छा, फाइल्स में क्या लिखा है इस बारे में? हैरान कुन इंकिशाफ ये सामने आया कि निक्सन का मकसद तीसरी आलमी जंग छेड़ना बिल्कुल नहीं था। ये आलमी सतह का एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक ब्लफ था। एक ब्लफ, सिर्फ डराने के लिए? बिल्कुल। दस्तावेजात वाज़ेह करती हैं कि अमेरिका की उस इलाके में बराह रास्त फौजी कार्रवाई करने की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तो फिर इन्होंने इतना बड़ा तमाशा क्यों लगाया? निक्सन सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डराना और आलमी सतह पर दबाव डालना चाहते थे ताकि वेस्ट पाकिस्तान पर किसी भी किस्म का हमला रोका जा सके। उन्हें हर हाल में अपने ब्रिज को बचाना था, ताकि चाइना के साथ जो मुताबिकत तय पाई है वो सलामत रहे। एग्जैक्टली। लेकिन देखें, ब्लफ के मैकेनिक्स ही यही होते हैं कि आपको अपना इरादा इतना संगीन दिखाना होता है कि दूसरा शख्स डर कर खुद ही पीछे हट जाए। सही। उन्होंने अपना सबसे बड़ा फौजी जहाज भेजकर दुनिया को पैगाम दिया कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही अंदर से उनका इरादा जंग करने का ना हो। एक ऐसी चाल जहां वजीर को सामने रख दिया जाता है पर उसे कुर्बान करने का कोई इरादा नहीं होता। ये तो बिल्कुल दुश्मन के जहन से खेलने वाली बात हुई। और इसमें वो कामयाब भी रहे कुछ हद तक। लेकिन इस किस्म के ब्लफ में एक बहुत बड़ा रिस्क भी तो छुपा होता है ना? अगर सोवियत यूनियन इस ब्लफ को कॉल कर लेता? जी बिल्कुल, ये डर तो था। या समुंदर में किसी छोटे जहाज के कप्तान से अचानक गलती से फायर हो जाता तो ब्लफ अचानक एक आलमी तबाही में बदल सकता था। किसिंजर और निक्सन इस बारे रिस्क के बारे में फाइल्स में क्या कहते हैं?
हाँ, व्हाइट हाउस की इंटरनल मेमोज में इस बात पर बहुत बहस हुई थी कि अगर बात बिगड़ गई तो क्या होगा। लेकिन किसिंजर का तज्जिया ये था कि सोवियत यूनियन खुद भी उस वक्त एक न्यूक्लियर जंग नहीं चाहता। अच्छा, यानी उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। जी, किसिंजर को मालूम था कि रशिया एक हद तक दबाव डालेगा, लेकिन तीसरी आलमी जंग का आगाज वो भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दुश्मन की नफ्सियात को पढ़ा और उस हिसाब से अपना ब्लफ खेला। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया का सबसे खतरनाक लेकिन उस वक्त के लिहाज से उनके मुताबिक सबसे मौसर तरीका था। और इससे उनका वेस्ट पाकिस्तान वाला गोल पूरा हो गया। उन्होंने वो फौजी दबाव तब तक बरकरार रखा जब तक उन्हें इस बात की तसल्ली नहीं हो गई कि वेस्ट पाकिस्तान का वजूद महफूज है, और इस तरह उनका चाइना वाला प्लान ट्रैक पर रहा। कमाल है। वैसे इन सब तहकीकी दस्तावेजात और खुफिया मंजरनामों पर बात करने के बाद मुझे लगता है लाजमी तौर पर यह सोचना पड़ता है कि इस तारीखी जायजे को आज के दौर में समझना आखिर क्यों जरूरी है। आपका सवाल बहुत वैलिड है। यानी 1971 के ये मामलात सब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। आज की इस तेज तरीन दुनिया में जहां जियोपॉलिटिक्स रोज बदलती है, एक आम इंसान के लिए इन फाइल्स और निक्सन के इस खुफिया ब्लफ को समझने की क्या अहमियत है? इसकी अहमियत वाकई बहुत बड़ी है। देखिए, इन दस्तावेजात ने हमें ये सिखाया है कि आज भी दुनिया में होने वाले फैसले वैसे नहीं होते जैसे वो खबरों की सुर्खियों में नजर आते हैं। बिल्कुल, जो दिखता है वो होता नहीं। जो लोग तारीख की इस आलमी शतरंज को और आलमी मफादात की इस ठंडी बेहिस तबीयत को समझ लेते हैं, उनके लिए मौजूदा आलमी हालात का तज्जिया करना बहुत आसान हो जाता है। यानी हम करंट इवेंट्स को बेहतर समझ सकते हैं। जी हाँ, जब आज कोई आलमी ताकत किसी मसले पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करती है तो वो सिर्फ उस मसले तक महदूद नहीं होता, उसके पीछे बिल्कुल उस ब्रिज की तरह नए आलमी मोहरे सेट किए जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। इन हकाइक को जानकर हम साथ ही खबरों से धोखा खाने के बजाय उस डीपर गेम को समझने के काबिल हो जाते हैं जो ताकतें पर्दे के पीछे खेल रही होती हैं। जियोपॉलिटिक्स के आलमी खेल में जज्बात की कोई जगह नहीं होती, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस चलती हैं। सही बात है। और इसी गौर व फिक्र के साथ मैं चाहता हूं कि हम इस गुफ्तगू को एक ऐसे फिक्रिया सवाल पर खत्म करें जो हमारे मुस्तकबिल को माजी की इस कड़ी के साथ जोड़ता है। जरूर। इन व्हाइट हाउस फाइल्स ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित किया कि पाकिस्तान एक पुल था जिसने अमेरिका और चीन की क़यादत को उस दौर में एक दूसरे के करीब किया। लेकिन जरा सोचिए, अगर 1971 में वो ब्रिज काम ना करता। एक बहुत ही दिलचस्प व्हाट इफ सिनेरियो है ना? अगर निक्सन और चीन का वो खुफिया राब्ता किसी वजह से लीक हो जाता या हमेशा के लिए नाकाम हो जाता, तो क्या आज की जदीद दुनिया में आलमी ताकतों का तवाज़ुन बिल्कुल मुख्तलिफ ना होता? मेरे ख्याल है बिल्कुल मुख्तलिफ होता। आज के दौर में अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी माशियात हैं और सबसे बड़े रकीब भी हैं। लेकिन अगर उनके दरमियान वो इब्तदाई मुताबिकत कभी तय ना पाती, तो क्या आज की कोल्ड वॉर की शक्ल वैसी ही होती जैसी अभी हम देख रहे हैं? ये वाकई सोचने की बात है। ये वो सवाल है जिस पर हमें और हमारे सुनने वालों को गौर करना चाहिए, क्योंकि तारीख के इन्हीं पन्नों में आने वाले कल के बहुत से जवाब छुपे हैं। इस पर जरूर सोचिए।